Hello students, welcome you all to the foundation zone of Radhika classes. In this video, we are going to discuss about the topic plant tissue. This video is very helpful for the class 9 students. हम इस वीडियो में through flow chart complete plant tissue topic discuss करने वाले हैं and this topic will be very helpful for attempting your questions in exams from the topic plant tissues. चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, you will get throughout basic knowledge and the conceptual knowledge of the topic plant tissues. So बच्चे start करते हैं plant tissues से. Tissues क्या हैं? Tissues are a group of cells that combines together to perform specialized function. You know the basic concept कि cell is a structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. Cells combines together to form different types of tissues, and these tissues in plant specifically combine. Tissues combines together to form organ. और plant में अगर मैं organs की बात करूं तो plant के organs क्या हैं? Root, stem, leaf, flower. These are the different organs of a plant, and this organ, the organ combines and form organ system, transport system, circulatory system, or we can say excretory organs. All these are present in plants and they form a one organism. और ऑर्गेनिज्म या हमारे बॉटनी में प्लांट टिश्यूज में क्या कहलाएगा? अ वन प्लांट इज एन ऑर्गेनिज्म हियर. तो हमने क्या बात करनी है बच्चे आज? प्लांट टिश्यूज के टाइप्स के बारे में. कितनी तरह के प्लांट टिश्यूज होते हैं, उनका क्या काम है. सो बच्चे, प्लांट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड. प्लांट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू. नाउ व्हाट आर दीज? ये मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट का क्या मतलब है? तो बच्चे सुनेंगे ध्यान से. द टिश्यू दैट हैव अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड. द टिश्यू दैट हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड. जिन टिश्यूज के पास डिवीजन की कैपेबिलिटी है, ग्रोथ करेंगे डिवाइड करके, एक से दो सेल नए सेल बनाएंगे. एंड द टिश्यू दैट हैव अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो हम इसे कह सकते हैं इट इज डिवाइडिंग टिश्यू. It is dividing tissue, and in the dividing tissue it has prominent nuclei. अब इसमें dividing tissue है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस डिवीजन कराएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, बट दे लैक वैक्यूल. ऐसे सेल्स में वैक्यूल नहीं होता है. दे लैक vacuoles. They do not have vacuoles. Okay. Now next is permanent tissue. Once the tissue is young, it divides for the growth. Meristematic tissue. And once it get mature and loses the capability of division, तो वो क्या बन जाएगा? permanent tissue. This is means non-dividing mature tissue होगा. ये एक mature tissue होगा जो अब डिवाइड नहीं करेंगे, स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगे अदर दैट डिवीजन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड प्लीज नोट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हेन कन्वर्ट्स टू परमानेंट टिश्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. आपसे पूछा जाएगा कि when meristematic tissue converts into permanent tissue, the process is called differentiation. The meristematic tissue get differentiated into the permanent tissue. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बच्चे जब हम बात करते हैं, जब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 डिफरेंट पार्ट्स में. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. पोजीशन के बेसिस पे हमने इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. सी, दिस इज आइदर अ रूट और अ शूट ऑफ अ प्लांट. So the tissue present at the tip apex is called apical meristem. What is meristem? Meristematic की short form होगी meristem. Apical meristem. The tissue that is present in a lateral walls here is called lateral meristem. It is called lateral meristem. And the third one is intercalary meristem. What is intercalary meristem now? The tissue that is present in between two permanent tissues. दो permanent tissue के बीच में in between present है, that is called intercalary meristem. ध्यान से देखेंगे, आपने बच्चे शुगर केन देखा होगा, तो शुगर केन कुछ इस तरह से नजर आता है.
तो अब आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो आप ये याद रखेंगे बच्चे, ये जो पोर्शंस होते हैं दीज आर कॉल्ड नोड्स। एंड किसी भी प्लांट की स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। These are nodes from where the branch originates. These are nodes from where the branch originate. And ये क्या है? नोड्स, जहां से ब्रांच बनेगी, और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनोड्स। उसे क्या कहेंगे? इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स के बीच में नोडल रीजन में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, बिकॉज इंटरनोड्स आर परमानेंट टिश्यू, और दो इंटरनोड के बीच में प्रेजेंट है नोड्स, तो दैट इज intercalary meristem. And this intercalary meristem is also found in grasses. आपने बच्चे ग्रेजिंग एनिमल्स देखे होंगे। ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं? काओ, बफेलोज, दे ग्रेज, गोट्स दे ग्रेज एंड दे ईट द हर्बीवोर्स है वो, तो ग्रासेस खा लेते हैं, कुछ पोर्शन उसमें रह जाता है। तो वो जो ग्रासेस रीजनरेट कर रही हैं वो किस वजह से कर रही है? बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। द रीजनरेशन इन अ ग्रासेस इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। और एपिकल मेरिस्टम कहां प्रेजेंट था? एपेक्स पे। तो ये क्या करेगा? इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द प्लांट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ प्लांट। एंड लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट ऑन अ लेटरल वॉल, तो वो क्या करेगा? लेटरल वॉल्स पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? लेटरल वॉल्स में सिलेंड्रिकल शेप होती है रूट और स्टेम की, उनकी लेटरल वॉल्स में प्रेजेंट है, तो उसकी क्या इंक्रीज कराएगा? गर्थ। इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। यहां आप एक पॉइंट नोट करोगे बच्चे, लेटरल मेरिस्टम के लिए आप एक पॉइंट नोट करेंगे क्या? कि जो लेटरल मेरिस्टम है ना बच्चे, लेटरल मेरिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। हम इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। एंड जो अगर आपसे पूछा जाए नेम अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो इट इज एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। वाइल जो लेटरल मेरिस्टम है, जिसे हम कैम्बियम भी कह रहे हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। गर्थ इज सेकेंडरी ग्रोथ, मीन्स नॉट नेसेसरी, एसेंशियल ग्रोथ का पैरामीटर नहीं है प्लांट में गर्थ। बहुत सारे मोनोकोट प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ लेंथ ही होती है बच्चे, गर्थ नहीं बढ़ती है, तो दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में नहीं आती है, वो मेन ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। और वो सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है? लेटरल मेरिस्टम, ऑल्सो नोन एज द कैम्बियम। एंड प्रेजेंट ओनली इन डाइकोट्स, डाइकोट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। डाइकोट फॉर एग्जांपल ग्राम पी, जिनका सीड के 2 कॉटिलिडन होते हैं, ब्रेक्स इनटू 2 कॉटिलिडन। वाइल मोनोकोट्स, जिनका सीड एक ही कॉटिलिडन होता है, ब्रेक नहीं होता है, उनमें लेटरल मेरिस्टम नहीं होता है। एंड लेटरल मेरिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। ये हो गया बच्चे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएट होके क्या बना देगा? परमानेंट टिश्यू बनाएगा। तो अब हम परमानेंट के बारे में पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सो परमानेंट टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई किया इनटू 2 पार्ट्स। वन इज सिंपल परमानेंट एंड अगेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है? व्हेन ऑल द सेल्स, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, सभी के सभी सेल्स सिमिलर सेल्स है, सिमिलर सेल्स का बना है, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना है। किसका बना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, ये मोर स्पेसिफिकली क्या फंक्शन करता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू, ये क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये सपोर्टिव टिश्यू होगा। While the complex permanent tissue is referred as vascular tissue, इसे हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। Why वेस्कुलर टिश्यू? तो अभी हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट कराता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। तो बच्चे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इट इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। पैरेन्काइमा, it is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma.
The three types of simple permanent tissue is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. और इसमें बचे parenchyma और collenchyma, these are living tissues. Parenchyma is living tissue, collenchyma is living tissue, but sclerenchyma is dead tissues. Your nuts or the husk of a coconut all are made up of sclerenchyma tissue. तो पैरेनकाइमा कहाँ होता है? पैरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में आप एक लीफ ले रहे हो और लीफ के ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट लेयर रिमूव करते हो, तो दैट ट्रांसपेरेंट लेयर, अपर लेयर ऑफ अ लीफ फ्रूट स्टेम इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यूज. कॉलेनकाइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा कहाँ मिलता है? हर्ब्स में, हर्ब्स में, लीव्स में. It is always present in a soft part of, it is called spongy tissue. Soft part of a plant में मिलता है, spongy tissue होता है ये, ठीक है. And sclerenchyma की हम अभी बात कर चुके हैं. It is present in nuts, husk of coconut, as it is a dead tissue. Dead tissue है तो इस तरह से ही strength provide करने वाले parts of plant में मिलेगा, ठीक है. आगे बात करते हैं इसकी पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं. सो बच्चे आगे हम क्या बात कर रहे थे? लिविंग है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, एंड शेप जनरली इसकी क्या होती है? ओवल शेप होता है जनरली. एंड ओवल शेप है तो सेल्स, ओवल शेप सेल्स जब अरेंज होंगे, रीअरेंज, अरेंज होंगे एक के साथ, तो दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम. तो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस यहां प्रेजेंट होता है. द सेल्स हैव intercellular space, oval in shape. Cell wall, plant have cell wall, तो cell wall, cell wall is made up of cellulose. cell wall किसकी बनी है? cellulose की बनी है. और अगर मैं कॉलेनकाइमा की बात करती हूँ बच्चे, तो कॉलेनकाइमा की शेप कैसी है? पॉलीगोनल. इट इज पॉलीगोनल इन शेप. इनमें भी पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी पॉलीगोनल शेप के होते हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट. इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी लिटिल, दे हैव वेरी लिटिल or almost negligible amount of intercellular space. The space between two cells is present. Now cell wall, cell wall again made up of cellulose with deposition of pectin at corner. इस पॉलीगन के कॉर्नर्स पे किसकी डिपोजिशन हो जाती है? पेक्टिन की डिपोजिशन हो जाती है. एंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन दिस टिश्यू बिकम्स सॉफ्ट, स्पॉन्जी, एंड दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट. क्या प्रोवाइड करेगा फिर? फ्लेक्सिबिलिटी. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. जबकि हमारा पैरेनकाइमा टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है? फूड स्टोरेज. इट हेल्प्स इन फूड स्टोरेज, प्रोवाइड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा? कॉलेनकाइमा. अब अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू. अब वो डेड है तो क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ. आप समझते हो, द हस्क ऑफ कोकोनट, जो आपके जूट बैग्स है, वो जो जूट को पोर्शन है वो कहां से ऑब्टेन हुआ है? दैट इज स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स ऑफ द जूट. दैट आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स ऑफ अ जूट. मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. ओके. नाउ शेप की बात करें तो बच्चे इसकी इररेगुलर शेप होती है. इट हैज इररेगुलर स्पेस शेप एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस ड्यू टू डिपोजिशन. ये डेड है, इसमें इररेगुलर शेप है, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन. ड्यू टू डिपोजिशन, irregular deposition of lignin, the cell become dead. Irregular shape, no intercellular spaces, and provides mechanical strength. ये हुआ हमारा पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. यहाँ पे एक और बात नोट करोगे बच्चे, ये जो पैरेनकाइमा है ना आपका, ये पैरेनकाइमा, इट इज फर्दर मॉडिफाइड. मॉडिफिकेशन करेंगे आप पैरेनकाइमा की. व्हेन पैरेनकाइमा टिश्यू हैज ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल है, तो पैरेनकाइमा टिश्यू ग्रीन हो जाएगा. देन इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तब हम इसे क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट अगर उसमें प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा. द टिश्यू, पैरेनकाइमा टिश्यू इज व्हेन हैज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. एंड another type of parenchyma modification,
अनदर टाइप ऑफ पैरेन्काइमा मॉडिफिकेशन इज कि जब इसमें लार्ज एयर कैविटी, द स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन पैरेन्काइमा टिश्यू बिकम क्वाइट लार्ज, क्रिएट्स लार्ज एयर कैविटीज, तो हम इसे क्या कहते हैं? एरेन्काइमा. फॉर एग्जाम्पल द लोटस लीफ. लोटस लीफ हैज parenchyma tissue. What is parenchyma? It is basically a parenchyma tissue with a large air cavity. तो हम उसे क्या कह रहे हैं? Parenchyma tissues and that provide buoyancy. Air cavities बनने की वजह से वो buoyancy, light weight provide कर रहा है, so that plant can easily float on a water. Example the leaf of a lotus flower. Okay, leaf के जो lotus के flowers हैं उसके leaves water पे float करते हैं. Why? Because of parenchyma tissue. अब बढ़ते हैं हम complex permanent tissue की तरफ. Complex permanent tissue further classified into two. One xylem, another phloem. Xylem helps in transport of water and minerals from roots. Plant water कहाँ से ले रहा है? रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है. रूट से डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब करने के बाद अपर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लीव्स तक, क्योंकि लीव्स वाटर लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स नोन एज ट्रांसपिरेशन. सबको पता है बच्चे कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट्स and transported to upper part of the plant, and then water is lost in the form of water vapors, that is called transpiration. The loss of water, note karo, the loss of water in the form of water vapors from the leaves through stomata, the pores present on a leaf are called stomata, is known as transpiration. और वो ट्रांसपिरेशन हो रही है जब, तो रूट्स से लीव्स तक वाटर कौन लेके जा रहा है? कौन सा टिश्यू लेके जा रहा है? जाइलम. एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फूड क्या होता है बच्चे? तो प्लांट को आपको पता है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स क्या बनाते हैं? प्लीज नोट, प्लांट्स जो है, फूड जो है, फोटोसिंथेसिस से जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? ग्लूकोज. एंड देन 2 molecules ऑफ ग्लूकोज. आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो ये बात याद होनी चाहिए, वेरी बेसिक. 2 molecules ऑफ ग्लूकोज कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म सुक्रोज, एंड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सुक्रोज. फूड कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? सुक्रोज वाया फ्लोएम टिश्यू. लीव्स में फूड सिंथेसाइज हुआ, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, कहां ट्रांसपोर्ट होगा? इन द ऑल द डायरेक्शन, टू द लीव्स आल्सो, टू द स्टेम आल्सो, टू द फ्लावर्स आल्सो, एंड द स्टोरेज ऑर्गन्स आल्सो, जहां भी उसको स्टोर होना है. तो फ्लोएम के थ्रू जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा? सुक्रोज. फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना वो क्या था? ग्लूकोज. फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होगा? सुक्रोज. When 2 molecules of glucose combine, and then when so many molecules of glucose combine, it forms starch. And plants always stores food in the form of starch. किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. इसका मतलब बच्चे, अगर मैं वेजिटेरियन हूं और कोई प्लांट पार्ट खा रही हूँ, वेजिटेबल सभी खाते हैं, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बिकॉज जब नॉनवेज बनता है तभी उसमें वेजिटेबल्स तो यूज होती है. तो whenever we are eating any plant part, what we are intaking? We are intaking the starch, because plant stores carbohydrate. किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में? In the form of starch. तो plant stores, plant prepare food by the process of photosynthesis in the form of glucose, transport via phloem through sucrose, and stores in the form of starch. अब क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हैं तो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कितने टाइप के सेल से बना है. सो जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स. एंड फ्लोएम अगेन इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और इन दोनों को हम वेस्कुलर टिश्यू कह रहे हैं. क्यों कह रहे हैं बच्चे वेस्कुलर टिश्यू? बिकॉज दे बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट. किसको? जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जो वाटर से ही वो डिफरेंट मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? हमेशा याद रखोगे, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. अब फ्लोएम के जो 4 डिफरेंट सेल्स हैं उनके नाम लिखते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स. इट इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स. अब यहां क्या याद रखना है? ये 4 नाम तो हम याद कर लेंगे,
इसमें भी स्पेसिफिकली याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में बोला था बच्चे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड। तो यहाँ पे कौन डेड है कौन लिविंग है वो हमें पता होना चाहिए। सो बच्चे पैरेन्काइमा इज लिविंग, रेस्ट ऑल थ्री आर डेड। जाइलम के पैरेन्काइमा, यही वाला पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में जब जाइलम में पैरेन्काइमा होता है तो लिविंग ऑलवेज। एंड फाइबर्स, फाइबर्स कौन से होते हैं, ये फाइबर किसके होते हैं, हमेशा स्क्लेरेन्काइमा के। सो अगर आपको कहीं पे लिखा मिलता है जाइलम फाइबर्स की जगह जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, बिकॉज ये जो फाइबर्स बने हैं इरेगुलर शेप के, किसकी वजह से बने, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने। तो वी कैन से जाइलम पैरेन फाइबर्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, इट इज डेड। ट्रेकीड्स एंड वेसल्स आर आल्सो डेड। यहां आप ये याद रखोगे बच्चे, ये जो दो हैं these are परफॉर्म असेसरी फंक्शन। वाटर ट्रांसपोर्ट का जो कंडक्टिंग फंक्शन है, मींस जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बेसिकली किससे हो रहा है, कंडक्शन किससे हो रहा है, ट्रेकीड्स एंड वेसल से। एंड हियर द पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स ओनली have a supportive function, accessory function, helps in transport of water and minerals. Same in the case of phloem. phloem के केस में बच्चे ये dead है, phloem fibers are dead because they are sclerenchymatous in nature, तो dead ही होंगे। And parenchyma, companion cells and sieve tube elements are living, and these companion cells and sieve tube elements are basically the conducting elements that helps in transport of food, that is sucrose from the various part of the plant to the various part of a plant from leaves। and याद रखोगे बच्चे ये दोनों accessory function perform करते हैं, only supportive function। and the last point here is xylem का जो transport होता है बच्चे that is unidirectional। the transport of xylem is unidirectional, that it transport water from only to the roots to the upper part, that is leaves, and then water is lost in the form of water vapors known as transpiration। जबकि जो phloem का transport है that is always bidirectional, or we can say multidirectional, because the plant synthesize food in the leaves, green part of the plant where chlorophyll, chloroplast is present, and then distribute to the various part, roots also, fruit also, flower also, सभी जगह transport करना है उसे। so it is bidirectional। so this is all about your plant tissue। हमने one shot में बहुत अच्छे से revise किया plant tissues को। in next class we will come with a very again important topic of class 9। so that's all for today, thank you so much।